Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे 22 नवंबर के। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेशनल अफेयर्स की। नेशनल अफेयर्स में भी अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ चेंजेस लाए गए हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। आइए इन सबसे पहले चेंजेस को देखते हैं कि ये चेंजेस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटेंडेड टाइम फॉर इन्वेस्टिंग इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, पहले ही होता था, जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रूव किया 3 मंथ के अंदर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। पहले ये 1 मंथ होता था। फिर इन्वेस्टमेंट बाय स्पाउस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो स्पाउस होती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, वो भी यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दूसरा चेंज ये। तीसरा है ब्रॉडेंड डेफिनेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें एक, जैसे आपकी डेथ ग्रेचुइटी हो गई, आपकी ग्रेचुइटी हो गई, आप जब छुट्टियां जो होती हैं आप उनको कंपनसेट करा सकते हैं। छुट्टियों के अलावा आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जब कोई भी व्यक्ति रिटायर होता है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है। ठीक है, जैसे EPS हो गया, फिर रिटायरमेंट कम विड्रॉल बेनिफिट्स हो गए, फिर आपका एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स हो गई, लीव इनकैशमेंट्स हो गई। करेक्ट, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, डिडक्शन ऑन प्री मैच्योर विड्रॉल। पहले क्या होता था, जो एक्सपायरी होती थी, अब उस पर अब क्या है कि 1% तक का डिपॉजिट चार्ज लगेगा। बस आपका जो भी डिपॉजिट था ना उसमें से 1% डिडक्ट हो जाएगा अगर आप एक्सपायरी के 1 साल पहले आप यहाँ पे विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, वहीं पर पहले क्या होता था, इफ द अकाउंट वॉज क्लोज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, इंटरेस्ट पेड ऑन द डिपॉजिट इन द अकाउंट वॉज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द डिपॉजिट एंड द एंटायर बैलेंस वॉज पेड टू द अकाउंट होल्डर। मतलब पहले पूरा डिपॉजिट ले लिया जाता था जो इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन अब सिर्फ 1% डिडक्ट होगा। नेक्स्ट चेंज, नो लिमिट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। 3 साल के लिए ये स्कीम होती है। पहले क्या होता था, एक बार एक्सटेंशन मिलता था, अब क्या है, n टाइम्स यहाँ पे एक्सटेंशन मिल सकता है। मतलब कितनी बार भी आपको यहाँ पर 3 साल के लिए आप इस स्कीम को एक्सटेंड करा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन एक्सटेंडेड डिपॉजिट्स। जो ये एज पर द न्यू रूल्स extending the senior citizen savings account on the maturity, the deposits will earn the interest rate applicable to the scheme on the date of maturity or on the date of the extended maturity। या तो मेचोरिटी के टाइम मिल जाएंगे या फिर एक्सटेंडेड जो मेचोरिटी होगी उस पर। फिर जो मैक्सिमम अमाउंट है उसको भी यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है। पहले 15 लाख तक का आप इन्वेस्ट कर सकते थे, अब ये बढ़कर कितना हो गया, मैक्सिमम लिमिट 30 लाख रुपए हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। अगर मैं बात करूँ सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट की, इस सेविंग स्कीम की, तो ये लॉन्च कब की गई थी, 2004 में लॉन्च की गई थी। इस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है अभी एज ऑफ नाउ, तो 8.2% पर एनम यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। ये आपका टैक्स, यहाँ पे आप डिडक्शंस ले सकते हैं अंडर 80C।
करेक्ट, ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। और यहाँ पे 1.5 लाख रुपए पर महीने पर साल का आप यहाँ पर डिडक्शन टैक्स से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फिर नेक्स्ट है अभी रिसेंटली राजेश अग्रवाल, जो कि सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, करेक्ट, इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया 1% इंटरेस्ट रेट रिबेट फॉर दिव्यांगन, जो कि होते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इन लोगों के लिए यहाँ पे 1% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में रिबेट देखने को मिला हमें, करेक्ट। इससे क्या होगा, एक तो इनको इकोनॉमिकली इनकी हेल्प की जाएगी, राइट। एंड जो लोग जो अपने आप को मतलब जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी होते हैं, राइट, उनको यहाँ पे हेल्प करने के लिए, उनके ऊपर से फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस करने के लिए ये यहाँ पर 1% एक्स्ट्रा उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। 1% का बेसिकली रिबेट प्रोवाइड किया जाएगा इन द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो राजेश अग्रवाल सेक्रेटरी जो है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इनके द्वारा यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई 1% इंटरेस्ट रेट रिबेट की फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हु रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम थ्रू द नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये एम क्या रहेगा इसका, इज टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फॉस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम्पावरमेंट अमंग द दिव्यांगजन, दैट इज अमंग द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट है who attended IPEF and EPEC मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन USA। तो अभी याद रखेंगे हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ये अभी विजिट पर थे, 4 डे की ये विजिट पर थे टू सैन फ्रांसिस्को USA, राइट, 13 से लेके 16 नवंबर के बीच में। एंड यहाँ पर इन्होंने विजिट किया आपका, एंड यहाँ पे इन्होंने अटेंड किया 3rd एडिशन ऑफ IPEF। IPEF क्या है आपका, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को, राइट। एंड यहीं पर इन्होंने एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को भी यहाँ पे इन्होंने हेल्प किया। तो इसको IPF एंड APEC, दैट इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसको यहाँ पे होस्ट हेल्ड किया, मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया, होस्ट नहीं किया, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो 3rd एडिशन ऑफ IPEF एंड APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसको यहाँ पर इन्होंने अटेंड किया था, ठीक, मार्क करके चलेंगे। फिर यही याद रखेंगे ये जो 3rd एडिशन ऑफ IPEF था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसके अंडर यहाँ पे एक MOU साइन किया गया इंडिया एंड USA के बीच में, करेक्ट, ये भी याद रखेंगे। और कहाँ पर ये MOU साइन हुआ, सैन फ्रांसिस्को USA में। मूविंग ऑन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट आ जाता है बीमा लोकपाल डे। तो बीमा लोकपाल डे ऑब्जर्व कब किया जाता है, तो 11 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं बीमा लोकपाल डे, राइट। एंड यहाँ पे इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन डिस्पोज्ड हाउ मेनी कंप्लेंट्स इन फिस्कल ईयर 23। तो यहाँ पे याद रखेंगे 92.28% कंप्लेंट्स को यहाँ पे डिस्पोज कर दिया गया, राइट। अगर मान लो 100 कंप्लेंट्स आई तो 100 में से 92.28 कंप्लेंट्स की यहाँ पे उनको खत्म कर दिया गया, राइट। उनके जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व कर दिया गया है। अगर यहाँ पे डाटा देखें तो डाटा के हिसाब से 51,625 कंप्लेंट्स को यहाँ पे रिजॉल्व किया गया आउट ऑफ 55,946 जो कि रिसीव की गई अक्रॉस ऑल द 17 इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन ऑफिसेस, ठीक है, इसको मार्क करके चलेंगे। और ये ऑम्बड्समैन, इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन का काम क्या होता है कि जो भी आपकी लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो जब इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करती हैं या फिर कोई भी दिक्कत आ जाती है तो जो क्लेमर होता है, जो अपने इंश्योरेंस कराते हैं जो लोग, उनको जब जरूरत पड़ती है तो वो यहाँ पर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, अपनी कंप्लेंट्स डाल सकते हैं और उनकी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करना इनका यहाँ पर ये काम रहता है। फिर अगर मैं बीमा लोकपाल डे की बात करूं, ये 11 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब एंड इट इज टू कमेमोरेट द फाउंडेशन डे ऑफ द इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन, जो कि सेटअप किया गया था ताकि लोगों की जो इंश्योरेंस रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व किया जा सके। एंड इसको नवंबर 1998 में इस्टेब्लिश किया गया था। फिर अगर इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन की बात करें तो अभी हमने देखा ये क्वासी जुडिशियल ग्रीवेंस रिलेशन मशीनरी है एंड इनका एम क्या रहता है, इनका काम क्या है कि जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करना ऑफ द इंश्योर्ड पर्संस अगेंस्ट लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। एंड यहाँ के चेयरमैन कौन रहेंगे ऑफ द काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन, वो रहेंगे सिद्धार्थ मोहाटे जी। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकरेंस पे। अभी ये बैंकरेंस साइन हुआ जो कि है कर्नाटका बैंक एंड HDFC लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। इससे क्या होगा, जो भी HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होंगे वो सेल किए जाएंगे किसको, टू द कस्टमर्स ऑफ कर्नाटका बैंक, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स के द्वारा अभी इंडिया की GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई 2024 के लिए कितनी, बताओ, राइट। तो यहाँ पे याद रखेंगे 2023 और 2024। अभी 2023 में जो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है ना वो है 6.4% की और 2024 में ये 6.3% की प्रोजेक्ट की गई है। बट लेट मी टेल यू, कल ही एक नोटिफिकेशन आया है RBI के द्वारा
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, जहाँ पे उन्होंने बताया कि 2024 में देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ रिसेशन एंड रीज़न बीइंग क्योंकि जो ऑयल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, जो फूड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से देयर इज़ अ हाई चांस ग्लोबली एज वेल एज इंडिया में हमें रिसेशन देखने को मिल सकता है। रिसेशन के टाइम पे बहुत सारी जॉब लॉसेस हो जाती हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, करेक्ट, मार्केट्स गिर जाती हैं, स्टॉक मार्केट पे भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है हमें, करेक्ट। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स है ना, आप इसको ऐसे समझिए, अभी ये नंबर्स दे रखे हैं, लेकिन कल को कोई भी दूसरा एक जियोपॉलिटिकल अगर इवेंट होता है, ब्लैक स्वान टाइप इवेंट अगर हमें देखने को मिलते हैं, तो ये जो नंबर्स है ना, ये बेस फिर से चेंज हो जाएंगे, फिर से जो प्रिडिक्शंस है वो दूसरी प्रिडिक्शंस होंगी। तो ये जो आपका एस्टिमेट लगाए जाते हैं ना, दे कीप्स ऑन चेंजिंग। तो यहाँ पर अभी गोल्डमैन सैक्स के लिए जो 2024 की जीडीपी प्रोजेक्ट की जा रही है वो कितनी है, 6.3% से यहाँ पे इंडिया को ग्रो करने की बात की गई। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इन्फ्लेशन रेट की, तो जो सीपीआई डाटा निकल के आया है वो है 5.1% ईयर ऑन ईयर एवरेज इन 2024 एंड जो कोर इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 4.5% ईयर ऑन ईयर इन 2024, जो कि एक एस्टिमेटेड है 5.1% इन 2023। अगर एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें, हमने ये भी देखा कि $1 ऑलमोस्ट 85 रुपीज़ को टच करके आया, जिसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो डॉलर है वो और स्ट्रांग हो गया एंड जो रुपी की वैल्यू है वो और गिर गई, मतलब ये और वीक होता चला गया। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे पिछले कुछ सालों का, तो डॉलर ने ना अप्रिशिएट किए करे जा रहा है, डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट होती जा रही है एंड कहीं ना कहीं रुपी की वैल्यू नीचे गिरती जा रही है। इससे कहीं ना कहीं जब अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसमें हमें फायदा देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे उस चीज़ को खरीदने के लिए, लेकिन अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसी अमाउंट में, उतने ही डॉलर में हमें ज़्यादा रुपए मिलेंगे, करेक्ट। तो लेकिन हम जानते हैं इंडिया की जो है हम ट्रेड डेफिसिट है और हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं एज कंपेयर टू दैट जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए इंडिया में हम विजन लाना चाहते हैं मेक इन इंडिया, ताकि इंडिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बनाएं और उनको एक्सपोर्ट कर सके। ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो खत्म हो जाएगा हमारा, और इंडिया में हमारा सरप्लस हो जाएगा फिर वो, ठीक है, ट्रेड सरप्लस हो जाएंगे हम। लेकिन अभी ये सिचुएशन नहीं है, वो हमें अचीव करनी है, करेक्ट। तो इसको ये समझिए आप कंसेप्ट कि जब पैसे की वैल्यू गिर गई, यहाँ पे $1 अभी 82 83 था, अब वो 85 हो गया, तो इससे क्या हुआ, जो हमारा ट्रेड हम इंपोर्ट कर रहे थे वो और महंगा हो गया, और महंगा हो गया तो प्राइस जो होगा गुड्स का वो बढ़ जाएगा, प्राइस गुड का बढ़ेगा तो इंडियन मार्केट में जो वो प्रोडक्ट्स आएंगे वो बढ़ेंगे, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। वहीं पर अगर ये वैल्यू कम हो जाती है, और ये वैल्यू अगर हम ट्रेड ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट के टाइम पे हमें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हम उतना एक्सपोर्ट नहीं करते। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ड्यूरिंग द 51st इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स, वीरदास ने अभी कौन सा अवार्ड जीता, इन विच कैटेगरी? तो याद रखेंगे हम बात कर रहे हैं 51st एमी अवार्ड्स की, हुए कहाँ पर थे, न्यूयॉर्क यूएसए में, एंड यहाँ पे वीरदास ने, इनको भी सम्मानित किया गया एमी अवार्ड से इन द फील्ड ऑफ कॉमेडी, और ये पहले इंडियन कॉमेडियन बने हैं जिनको यहाँ पे एमी अवार्ड से सम्मानित करा गया है। इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करके चलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वो पहले इंडियन कॉमेडियन बने जिन्होंने एमी अवार्ड जीता ड्यूरिंग द 51st एमी अवार्ड्स, जो कि कहाँ पर हुए थे, न्यूयॉर्क यूएसए में। इसी के अलावा याद रखेंगे आपको, ये तो थे वीरदास, लेकिन अगर मैं पूछा जाए एकता कपूर, एकता कपूर, राइट, ये को फाउंडर हैं बालाजी टेलीफिल्म्स की, और इनको ऑनर किया गया यहाँ पे डायरेक्टरेट अवार्ड से, डायरेक्टरेट अवार्ड से, राइट। तो एकता कपूर जो कि बालाजी की को फाउंडर थी, इनको यहाँ पे डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये पहली इंडियन वीमेन बनी, इंडियन वीमेन फिल्म मेकर बनी जिनको डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित कराया गया। तो दोनों का याद रखेंगे, डायरेक्टरेट अवार्ड से कि इनको एकता कपूर, और वीरदास को किससे, पहले कॉमेडियन बने, कॉमेडी के लिए इनको एमी अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड 2023? तो ये जो नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड 2023 है, इससे किसको सम्मानित किया गया, कौन है वो व्यक्ति? वो है सुजीत रॉय। सुजीत रॉय ये फाउंडर हैं ऑफ ब्रेन अलाइव एआई के, ब्रेन अलाइव एआई के, राइट। एंड इनको ही अभी नासा इम्प्लीमेंटेशन एंड नासा इम्पैक्ट अवार्ड्स प्लैनेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर यहाँ पे इम्पैक्ट की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो आप देख सकते हैं, इम्पैक्ट है आपका इम्प्लीमेंटेशन एंड एडवांस कंसेप्ट टीम। तो नासा के इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? सुजीत रॉय को। रीजन बीइंग फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, जो इन्होंने जियो स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशन मॉडल प्रोजेक्ट के लिए
दिया अपना, जो इनका कंट्रीब्यूशन था इस प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए इनको यहाँ पे नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपका जो जियो स्पेशल एआई फाउंडेशन मॉडल है ना, ये नासा एंड एआईएम आईबीएम ये रिसर्च इन्होंने कोलैबोरेट की यहाँ पे, एंड यहाँ पे इन्होंने ये पहला नासा का ओपन सोर्स जियो स्पेशल एआई फाउंडेशन मॉडल लॉन्च किया फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा। करेक्ट। एंड सुजीत रॉय ये पार्ट थे इस नासा की रिसर्च टीम के, एंड इन्हीं को यहाँ पे नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, सुजीत रॉय को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। एसीसी ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ विनय एम टॉन्से एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं वो हैं एम टॉन्से। एसीसी के द्वारा इनकी अप्रूव किया गया अपॉइंटमेंट, एंड ये नवंबर 2025 तक, मतलब आने वाले 2 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। इससे पहले ये डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर सर्व कर रहे थे ऑफ एसबीआई, और अब इनको यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है ऑफ एसबीआई। ये प्रोबेशनरी ऑफिसर सेलेक्ट किए गए थे 1988 में ऑफ एसबीआई। फिर उन्होंने काफ़ी अलग अलग जगह पे चीफ जनरल मैनेजर्स का रोल भी हेल्प किया। फिर इनको ओसाका ब्रांच में इन जापान एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना के भेजा गया 2009 से लेकर 2013 तक, राइट। और फिर एमडी एंड सीईओ की पोस्ट भी संभाली इन्होंने ऑफ एसबीआई फंड मैनेजमेंट फ्रॉम 2020 टू 2022, और अब इनको यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया गया है। एसबीआई की मैं बात करूँ तो चेयरमैन कौन रहेंगे, दिनेश कुमार खारा जी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, एंड 1955 में इनको एस्टैब्लिश करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं लूक फ्रीडमैन। लूक फ्रीडमैन 60 साल के हैं, ये एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और इनको अभी 23rd प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है लग्जमबर्ग का। आई रिपीट, लूक फ्रीडमैन ये मेंबर रहेंगे ऑफ क्रिश्चियन सोशल पीपल्स पार्टी, एंड ये 23वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं लग्जमबर्ग के। ये सक्सीड करेंगे जेवियर बैटल को, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, एंड 2013 से 2023 तक वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे आपके लग्जमबर्ग के। लेकिन अब लूक फ्रीडमैन अपॉइंट किए गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस लग्जमबर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर आरबीआई ने अभी अपॉइंट किया 5 हिंदुजा ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स को एज द डायरेक्टर्स ऑन रिलायंस ग्रुप और रिलायंस कैपिटल बोर्ड। आई रिपीट, आरबीआई ने अभी 5 नाम याद रखेंगे, कौन कौन है वो है अमर चिंटोपंत, श्रद्धा चंद्रा वी जारेगांवकर, मूसे नेलिंग, हार्डिंग जॉन, एंड भूमिका बत्रा, एंड अरुण तिवारी। ये 5 लोग हैं जिनको अभी रिसेंटली ये रिप्रेजेंटेटिव है हिंदुजा ग्रुप के, इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर्स ऑन द रिलायंस कैपिटल बोर्ड। तो डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। 5 लोगों को अपॉइंट किया गया। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन नेवी ने अभी लॉन्च किया 4th मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज LSAM 10 यार्ड 78, और कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया, एट आंध्र प्रदेश। करेक्ट, इसको लॉन्च किया गया एट ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश। इसको बनाया किसके द्वारा गया, ये बिल्ड किया गया बाय MSME शिपयार्ड सीकॉन एनर्जी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रहेगी। करेक्ट, इसको लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश में ही। करेक्ट, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी पे इसको लॉन्च किया गया, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो सीकॉन एनर्जी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है वहाँ पर इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड फिशरीज डे करेक्ट कर लेंगे। एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो फिशरमैन कम्युनिटी है ना, उनके बीच में सॉलिडेरिटी बनी रहे, एकता बनी रहे, करेक्ट, एकजुट ये सब लोग रहें। तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं 21 नवंबर को। एंड इस बार 2023 में हमने ये 26वां एडिशन ऑब्जर्व किया वर्ल्ड फिशरीज डे का। यहाँ पे थीम आ जाती है सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड फिशरीज डे की। पहला फर्स्ट एवर वर्ल्ड फिशरीज डे कब ऑब्जर्व किया गया था, 1998 में ऑब्जर्व किया गया था फर्स्ट एवर वर्ल्ड फिशरीज डे। करेक्ट, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर वर्ल्ड टेलीविजन डे। टेलीविजन से जो हमारा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ के ऊपर, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसका इंपॉर्टेंस, पहले टेलीविजन होता था, अब आप देखते हैं वही यूट्यूब आ गया है, आपके आईपैड्स आ गए हैं, टैबलेट्स आ गई हैं, फ़ोन आ गया है। करेक्ट, इनका जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारी डे टू डे लाइफ पे, उसके लिए हम ये ऑब्जर्व करते हैं UN का वर्ल्ड टेलीविजन डे। 21 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार 2023 में हमने 27वां एडिशन ऑब्जर्व किया वर्ल्ड टेलीविजन डे का। और यहाँ पे थीम याद रखेंगे एक्सेसिबिलिटी, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड टेलीविजन डे की। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड हेरिटेज वीक। 19 से 25 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज वीक, एंड इसका एम रहेगा टू प्रमोट द हेरिटेज एंड द कल्चर ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड इंपॉर्टेंस फॉर देयर साइट्स ऑफ कंजर्वेशन। राइट, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड हेरिटेज वीक की। 19 से 25 नवंबर के बीच में हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज वीक।
यूनेस्को के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। 41st एंड 42nd साइट बता दो मेरे को कौन सी अपॉइंट की गई थी एज द यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 41st साइट बनी थी, ये थी आपकी शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में है। एंड 42nd साइट बनी आपकी होयसाला टेम्पल, जो कि कर्नाटका में रहेगी, राइट। फिर अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हेरिटेज डे की, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। और वर्ल्ड हेरिटेज डे की जो थीम रहेगी वो याद रखेंगे, वो है हेरिटेज चेंजेस। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड हेरिटेज डे की, जो कि 18 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज़। अभी यूपी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया CSIR एंड DRDO को एज देयर नॉलेज पार्टनर, ताकि ये मिलके अभी यहाँ पे सेटअप कर सकें एक बल्क ड्रग पार्क को। और ये कहाँ पर होगा बल्क ड्रग पार्क? लोकेशन क्या रहेगी इसकी? ये है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। और ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है कहाँ? ये यूपी में रहेगी। ये जो बल्क ड्रग पार्क होगा ना, यहाँ पर आपकी मेडिसिन्स एंड मेडिकल डिवाइसेस को सेटअप किया जाएगा नई टेक्नोलॉजी की मदद से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नई नॉलेज के साथ यहाँ पर इन मेडिसिन को डेवलप किया जाएगा बल्क में, ताकि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लोगों को यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड कराया जा सके, राइट। चीप एंड अफोर्डेबल यहाँ पे मेडिसिन प्रोवाइड कराई जा सके टू द इंडियन पॉपुलेशन। तो याद रखेंगे यूपी गवर्नमेंट ने CSIR एंड DRDO को नॉलेज पार्टनर अपॉइंट किया इस बल्क ड्रग पार्क को सेटअप करने के लिए, जो कि ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में होगा यूपी में, जहाँ पे मेडिसिन एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बनाया जाएगा। और ये जो मेडिसिन होंगी ना, ये अफोर्डेबल होंगी, ताकि लोगों को यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड कराया जा सके नई टेक्नोलॉजी से, नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके यहाँ पे ये सेटअप किया जाएगा। फिर यहीं पे इसके अलावा याद रखेंगे एक और, मेघालय ने फूड सिक्योरिटी कैंपेन लॉन्च किया था टू अचीव जीरो हंगर। ये हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, पूछा जा सकता है कि फूड सिक्योरिटी कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मेघालय के द्वारा, टू अचीव जीरो हंगर। तो दोस्तों अब आ जाते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वन लाइनर्स पर। इससे पहले जो हमारे करंट अफेयर्स ये तो थे, आज के सारे हमारे हो गए हैं। अब आ जाते हैं उनकी रिवीजन पर। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया 7 चेंजेस इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल्स। देन अभी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स लॉन्च किए गए फॉर एम्पावरिंग दिव्यांगन इंडिविजुअल्स, जो कि हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, और 1% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे रिबेट दिया गया। देन यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, इन्होंने अटेंड किया IPEF एंड APEC मिनिस्ट्रियल मीट US में। ये थर्ड एडिशन था IPEF का, ये भी याद रखेंगे। देन बीमा लोकपाल डे 11 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इंश्योरेंस ऑम्बर्समैन ने यहाँ पे 92.28% कंप्लेंट्स को रिजॉल्व किया इन फिस्कल ईयर 23। देन कर्नाटका बैंक ने पार्टनर किया HDFC लाइफ के साथ टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। गोल्डमैन सैक्स ने प्रोजेक्ट किया इंडिया की GDP ग्रोथ रेट एट 6.3% इन 2024। 51st इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की बात करें तो इंडिया के वीरदास को यहाँ पे एमी अवार्ड मिला फॉर कॉमेडी, और एकता कपूर को डायरेक्टरेट अवार्ड मिला, एमी अवार्ड इन डायरेक्टरेट अवार्ड, राइट। देन ब्रेन अलाइव AI फाउंडर, यह है सुजीत रॉय, इन्होंने अभी नासा इम्पैक्ट प्लेनेट अवार्ड को यहाँ पे जीत लिया है। देन ACC अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ विनय M टॉन्से एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI। नेक्स्ट लूक फ्रीडमैन, इनको अपॉइंट किया गया 23वां प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग। RBI ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ 5 हिंदुजा ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव्स एज द डायरेक्टर्स ऑन रिलायंस कैपिटल बोर्ड। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया 4th MCA बार्ज LSAM एट सीकॉन एनर्जी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में। देन वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर को, वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को, वर्ल्ड हेरिटेज वीक 19 से 25 नवंबर। एंड यूपी गवर्नमेंट ने साइन किया CSIR एंड DRDO को एज द नॉलेज पार्टनर फॉर बल्क ड्रग पार्क एंड ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। देन मेघालय ने लॉन्च किया फूड सिक्योरिटी कैंपेन टू अचीव जीरो हंगर, और ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में बेनिफिट रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन्होंने अभी साइन किया एक ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन PCA विद विच ऑर्गेनाइजेशन। ये PCA क्या है? PCA आपका प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, राइट। अब जरा बताओ ये PCA क्यों साइन किया गया, और सबसे पहले ये बताओ कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किसके साथ मिलकर ये PCA साइन किया? तो WHO के साथ मिलकर, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड WHO ने ये PCA साइन किया। और हम बात करें तो जो ग्लोबल ट्रेडिशनल हब है, ग्लोबल ट्रेडिशनल हब फॉर, या फिर सेंटर फॉर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए एक हब सेटअप भी करने की बात की गई थी। इसके लिए इवेंट भी हुआ था एक, वो कहां पर हुआ था? गांधीनगर, गुजरात में हुआ था। और किसकी मदद से? ये भी WHO की मदद से हुआ था। बेसिकली ये PCA एग्रीमेंट क्या करा रहा है कि हम जानते हैं कि अभी जो हमारा रुझान है ना पूरे वर्ल्ड में, लोग हमारी जो केमिकल बेस्ड मेडिसिन होती हैं उन पे ज़्यादा फोकस होता है, कि जो आपके पत्तों में आती है उन पे जो, लेकिन
इस एग्रीमेंट के अंदर जो फोकस रहेगा वो क्या रहेगा कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा देना है, कि हम चाहते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है ना, जो आपकी आयुष के अंदर आ जाती है, इनको हम बढ़ावा दें, इनको प्रमोट करें, इनके बारे में लोगों को जागरूक कराएं और इनका जो एक्सेप्टेंस है ग्लोबल स्केल पर उसको ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी तरफ रुझान में आए और ज्यादा से ज्यादा इसको एक्सेप्ट कर सके। तो ये आपका पीसी एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट को 2023 से लेके 2025 से लेके 2034 तक की ये स्ट्रेटेजी रहेगी। और इसी के अंदर अभी हम देखें तो पहला जो फेज होगा ना 2023 से लेके 2034 की ये स्ट्रेटेजी रहेगी। 2023 से लेके 2028 तक का इसका पहला फेज रहेगा, राइट। अभी हम देखते हैं कि जो आपका फर्स्ट फेज रहेगा वो कब से कब तक रहेगा, 2023 से 2028 तक। और इसके अंदर जो ग्लोबल डेवलपमेंट है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम की, उसको एक्सेप्ट कराने की बात की जाएगी, उसमें ज्यादा से ज्यादा हमें ग्रोथ देखेगी। एंड अंडर दिस पार्टनरशिप WHO प्रिपेयर करेगा ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल स्ट्रेटेजी 2025 से 34 के लिए, राइट। तो ये है आपका PCA अग्रीमेंट। फिर इसके अलावा इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी कौन सी बन गई है, बताओ जरा। इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी 8.4 गीगावाट का मार्क इन्होंने अभी अचीव किया, ये है अडानी ग्रीन, ये है अडानी ग्रीन, राइट। फिर अगर मैं बात करें इंडिया का पहला पोर्ट, इंडियाज फर्स्ट पोर्ट जिन्होंने हैंडल किया 16.1 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो को, कौन सा पोर्ट रहेगा, वो है मुंद्रा पोर्ट। आप मुझे बताओ ये मुंद्रा पोर्ट की लोकेशन क्या रहेगी, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ 10वां एडिशन ऑफ कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल, ये हुआ कहां पे था, 10वां कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल तो भुवनेश्वर में इसको कराया गया था, राइट। फिर इसके अलावा जरा बताओ अभी किस स्टेट ने या फिर किस सिटी ने एक रिकॉर्ड बनाया 22 लाख दियाज को लगा के, इन्होंने अपने पिछले साल का रिकॉर्ड भी ब्रेक करा, यह है अयोध्या, यह है अयोध्या, ठीक है। फिर एक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया जो कि है आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर हम बात करें किस स्टेट के द्वारा एक फूड सिक्योरिटी कैंपेन लॉन्च किया गया टू, या फिर हम बोले जीरो हंगर के लिए, फूड सिक्योरिटी कैंपेन, क्या नाम रहेगा इसका, मेघालय। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है विच पीस प्राइज वॉज प्रेजेंटेड टू कोविड-19 वॉरियर्स। ये कोविड-19 वॉरियर्स कौन होते हैं, जो कि आपके नर्सिस हो गई, डॉक्टर्स हो गए, आपका जो मेडिकल स्टाफ हो गया, राइट। इनको यहाँ पर कोविड वॉरियर्स बोला जाता है, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो ये वो इंडिविजुअल्स थे जो अपनी जॉब पर जाते थे और लोगों की यहाँ पे हेल्प करते थे, करेक्ट। तो किसको कौन सा पीस प्राइज प्रेजेंट किया गया था अभी कोविड-19 वॉरियर्स, तो उस पीस प्राइज का नाम क्या रहेगा, तो वो है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी कौन थी, ये हमारी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी इंडिया की, करेक्ट। और इन्हीं के सम्मान में ये अवार्ड इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में, राइट, इनके इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। और ये आपको याद रखेंगे यहाँ पे 25 लाख रुपए का भी आपको एक कैश प्राइज प्रोवाइड किया जाता है। ये जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है ये आपका किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराया जाता है। एंड इस बार अगर हम देखें तो इस प्राइज से अभी सम्मानित किया गया, इसको दिया गया अवॉर्डेड टू द न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड न्यू दिल्ली बेस्ड ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनको दिया गया यहाँ पर। इसके अलावा डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल जो कि प्रेसिडेंट हैं IMA के, एंड प्रोफेसर डॉक्टर रॉय के जॉर्ज जो कि प्रेसिडेंट हैं TNAI के, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। इसके अलावा याद रखेंगे 2022 में लास्ट ईयर किसको सम्मानित किया गया था, एक NGO था, एजुकेशन फोकस NGO था, ये एजुकेशन बेस्ड NGO था। एंड इस NGO ने क्या नाम रहेगा इसका, प्रथम, इसको यहाँ पे सम्मानित किया गया था 2022 के इंदिरा गांधी पीस प्राइज से। मूविंग ऑन, हु हैज बीन क्राउन्ड मिस यूनिवर्स 2023। तो 2023 की जो मिस यूनिवर्स अपॉइंट की गई है वो कौन है, शेनेस पेलासियोस। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये निकारागुआ से बिलोंग करती हैं, राइट, निकारागुआ। और पहली ये वीमेन बनी है निकारागुआ से जो अभी मिस यूनिवर्स क्राउन की गई। ये 72nd एडिशन था आपका ब्यूटी पीजेंट मिस यूनिवर्स का, ठीक है, जो 2023 में हुआ कहां पे था, एल सेल्वाडोर में हुआ था, ठीक। और अगर हम इनको देखें, इनकी बात करें तो ये है शेनेस पेलासियोस, निकारागुआ से है। 72nd ये एडिशन रहेगा आपका मिस यूनिवर्स का जो कि एल सेल्वाडोर में हुआ था, राइट, मार्क करेंगे इसको भी।
फिर इनको क्राउन किया गया आर बॉनी गैब्रियल के द्वारा, जो कि यूएस से बिलोंग करती हैं, जो 2022 की जिनके पास टाइटल था मिस यूनिवर्स 2022 का। फिर फर्स्ट रनर अप रही यहाँ पर मिस एंटोनियो पॉलसेट, जो कि थाईलैंड से बिलोंग करती हैं, और सेकंड रनर अप रही मिस मोराया विल्सन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अप्रूव किया $360 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इनटू आईटी हार्डवेयर सेक्टर। तो $360 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इन आईटी हार्डवेयर सेक्टर किसके द्वारा अप्रूव की गई? ये है हमारे इंडिया के द्वारा। हम जानते ही हैं इंडिया में हम मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम मेक इन इंडिया पे ध्यान दे रहे हैं। तो मेक इन इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट किया जा रहा है, एंड यहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग में भी हम आईटी हार्डवेयर्स को मैन्युफैक्चर करने की बात की गई, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को यहां पर मैन्युफैक्चर करने की बात की गई, एंड इसमें जो मेजर कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा आपका सेमीकंडक्टर्स के लिए। इंडिया में हम जानते हैं इंडिया को हम एक ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और उसके लिए गुजरात को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था कि जहाँ पे फॉक्सकॉन एंड वेदांता मिलके आपका सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन उनका वो एग्रीमेंट हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी गुजरात में हम देख रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग है आपकी सेमीकंडक्टर्स, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। करेक्ट। तो बेसिकली आईटी हार्डवेयर सेक्टर को ग्रो करने के लिए $360 मिलियन की इन्वेस्टमेंट देखी गई इंडिया की तरफ से। आने वाले 5 साल में ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी, और यहीं पे एक इंडिया का टारगेट भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया प्लान कर रहा है कि 2026 तक इंडिया का जो ये मैन्युफैक्चरिंग हब सेक्टर रहेगा, आईटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये $300 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये टारगेट रहेगा इंडिया का 2026 तक, और इस इन्वेस्टमेंट की मदद से हम देखेंगे आने वाले टाइम में 50,000 से भी ज्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट्स यहाँ पे जनरेट करने की बात की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, हु इज द फर्स्ट रेसिपिटेंट ऑफ मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड। दूसरा, किस कंट्री ने अभी होस्ट किया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट रिसेंटली। और तीसरा, विच इज़ द कैम्ब्रिज डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2023। और इसी के साथ साथ कॉलिंस डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2023 भी बताओ मेरे को क्या रहेगा। तो ये आपके 4 होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.